ओके, थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा डिले चल रहे हैं हम लोग एक्चुअली सेशंस में, बट आई होप यू डोंट माइंड, थोड़ा सा हमको मे बी 6:30 तक हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा. आई होप यू आर ओके विद दैट, राइट? Yeah. Yes. Yeah. Okay, so now this is a third topic, ATC procedures and radio telephony. Okay, now this topic is not so important from a perspective of your drone flying, because you are going to fly most of the time drones in green zone. This particular module is important if you are flying a drone in a yellow zone. Okay, or Okay. this topic will be more detailed and elaborative when the BVLOS rules comes. Okay, this will be very important when the BVLS conditions comes. Okay, because that point in time you will be flying the drone where you are not able to see the drone. Okay, so probably that time this will be more important to understand, because you are not seeing the drone, you are communicating and you are flying the drones without physically seeing it. But Point in okay. time this ATC procedures and radio telephony will come. As of now, from our current training perspective, this is only important if I am flying the drone in yellow zone. So yellow zone में क्या होता है? I am first of all not allowed to the fly drone. If I want to fly the drone, I have to take whose permission? ATC. Yes. तो ATC की हमारे पास परमिशन होनी चाहिए, और जब हम फ्लाई कर रहे हैं तो हमको ATC के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. With their coordination only we can fly the drone in yellow zone. Okay. 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 So let's see now what is the procedure. So communication with the ATC plays an important role as we enter the manned aircraft airspace and the ecosystem. First sentence क्या बोल रहा है? क्योंकि very clearly it says, first sentence it says क्या बोल रहा है? We enter the manned aircraft airspace. यानी येलो जोन जो है, क्यों रेस्ट्रिक्शन है येलो जोन में? बिकॉज दैट जोन इज बीन यूज्ड एज अ फ्लाइट एयर स्पेस, या जहाँ पे आपके एरोप्लेन फ्लाई होते हैं. तो एनीथिंग अबाउ 400 फीट इज योर येलो जोन. एनीथिंग अबाउ 400 फीट इज येलो जोन वेयर योर मैन्ड एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग. ऐसा जरूरी नहीं कि 400 फीट मतलब 400 फीट पे आपका एरोप्लेन फ्लाई होगा, बट फ्रॉम 400 फीट एंड अबाउ इज ऑल योर येलो जोन. Okay, in that zone the manned aircrafts are flying. तो वो जोन में जब भी आपको फ्लाइंग करना है, you have to have a communication with ATC. So communication with ATC plays an important role as we enter the manned aircraft airspace and the ecosystem. ATC should be informed for any RPAS operation prior to commencing the operation. यानी आपका सपोज 10 बजे का ड्रोन फ्लाइंग का एक्टिविटी प्लान है, तो आप 10 बजे है तो 10 बजे कॉल मत करो एटीसी को. एटलीस्ट यू कॉल देम 2 to 3 hours प्रायर, इंटीमेट देम, आस्क देम, टेक देयर कंफर्मेशन एंड देन यू रिज्यूम योर फ्लाइट एट 10 o'clock. Yes, Parth, you have a question? Yes. So if I'm, for example, if I'm flying in a green zone and if I go above to yellow zone, if I enter the yellow zone, will my drone detect the yellow zone or it will stop there? ड्रोन को कैसे पता चलेगा? Until unless you have defined it on the drone. Drone Yeah. doesn't know anything about green, red and yellow. Okay. Okay. ड्रोन को कुछ नहीं पता. Drone only knows about the GPS coordinates. Drone only knows about latitude and longitude. Drone only knows the height. अगर आपने डिफाइन किया है कि 400 फीट मेरा थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर तुमको जाना नहीं है, या फिर जाओगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आई शुड गेट एन अलर्ट कि आई एम क्रॉसिंग 400 फीट. ये सब आप ड्रोन में कर सकते हो. ओके, बट यू हैव टू सेट इट अप योर ड्रोन अकॉर्डिंगली. Okay. These alerts, all these thresholds, all these things you can set up. जैसे अभी हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन है ना, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है हाइट का 98 फीट. वो 98 फीट के ऊपर जाएगा ही नहीं, आप कितना भी उसको थ्रॉटल अप करो. वो मेरा ओईएम ने लिमिट करके रख दिया है, राइट? बट डीजे ड्रोन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. वो तो फिर 2 किलोमीटर मतलब 2000 फीट ऊपर जाएगा, 2-4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर, 10. अभी मैविक 10 किलोमीटर का रेंज है मैविक का, मैविक 4 प्रो का 10 किलोमीटर चला जाता है. वो अप्लाई कर सकते हो. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, अभी आपके पास भी अगर पार्थ आपके पास ड्रोन है, आप फ्लाई करने आओगे तब आप ड्रोन लेके आ सकते हो.
आप वहां पे फ्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। No, no, I still don't have a drone. मतलब लेना है I'm अभी. just saying, I'm just saying. Okay. I mean, I always tell my students, if you Yeah, have yeah. drones, please bring home because it's authorized site for flying. Right. राइट, तो आपको वहाँ पे मतलब अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप मेरे साथ फ्लाई करोगे तो आपको मैं और 4 चीजें और दिखाऊंगा कैसे Right, करना है, क्या करना है, यू कैन एक्सप्लोर। Right. ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट्स भी लेके आते हैं ड्रोन्स। कोई कोई स्टूडेंट्स बाद में मुझे पूछते हैं कि भाई हमको और फ्लाई करना है, तो फ्लाई आप वंस नाउ यू हैव बिकम अ स्टूडेंट फॉर 1 year यू कैन गो टू दैट साइट एंड फ्लाई, ओनली यू हैव टू पे फॉर योर अकोमोडेशन एंड फूड, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फ्लाइंग एट दैट लोकेशन। Understood. ओके, अगर हमारा भी ड्रोन फ्लाई करना है तो वो भी आप आके फ्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए अलग चार्ज है, Okay. क्योंकि दैट ड्रोन विल चार्ज यू फॉर द बैटरी चार्जिंग एंड ड्रोन का Right. चार्ज। Right. आगे आपका ड्रोन है तो आप कभी भी आके फ्लाई कर सकते हो, ओनली यू हैव टू टेक अकोमोडेशन एंड फूड ओवर देयर, दैट्स इट। Okay. आगे कोई दिक्कत नहीं। Yeah. So that is allowed for our student for 1 year. Okay. Sir, one more question. Like now, whenever we go for training, so we will going on the same day or will go one day before? Like देखो अभी अपना प्लान के हिसाब से वी आर सपोज टू गो ऑन वेडनेसडे, दैट इज ऑन 6th। okay, तो 6th को हमको 11 बजे वहां पहुंचना है, so okay, सुबह 11 बजे अपने को पहुंचना है। अपन 11 बजे पहुंच जाएंगे, अगर 6 बजे निकलेंगे घर से, 6-7 हाँ। बजे भी, तो 11 बजे आराम से अपन साइट पे पहुंच सकते हैं। तो यू so we are going on. you can come by bus, you can come by your own vehicle, you can come by car, you can come by train, all the options are available. Okay. Okay. Okay, so आप accordingly plan कर सकते हो। So one more question: if we are coming by bus, हाँ, any tourist bus, so it is like what you said, the stop is nearby or it's far away from your? तो अभी कैसे है ना, देखो अभी अगर ट्रेन से आते हो, एग्जाम्पल में बता, हाँ। पहले ट्रेन का बताता हूँ। ट्रेन से अगर आते हो हाँ। तो ट्रेन से आपको बीटी से ट्रेन लेना है, दादर से ट्रेन लेना है, थाने से ट्रेन लेना है, वेरेवर इट इज। ओके, ट्रेन से आप इगतपुरी तक आ सकते हो। Okay. इगतपुरी से आपको शेयरिंग रिक्शा या आपको प्राइवेट रिक्शा मिल जाएगी, जो कुछ Okay. 500, 600, 700 रुपया, 1000 रुपया तक चार्ज करते हैं। अच्छा. ओके, दैट इज वन साइड, कि आपको वहां हाँ। से इगतपुरी से आपको साइट पे ड्रॉप करेंगे, वहां से 22 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा. ओके, दूसरा ऑप्शन है बस से आ रहे हो, तो अगर आप बस से आ रहे हो तो लोकल MSRTC का जो बस आता है, या प्राइवेट ट्रैवलर्स बस जाती है जो नासिक जाती है, ओके, वो बस में भी आप आ सकते हो। आपको घोटी टोल पे उतरना है, घोटी टोल करके, Okay. Toll. हाँ, Okay. या घोटी विलेज के वहां पे उतरना है। वहां से भी आपको शेयरिंग या मतलब जो भी ऐसा प्राइवेट व्हीकल है वो मिल जाएगा। वो उधर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको वहां खड़े रहोगे तो मिल जाएगा, वो कोई भी आते जाते रहता है, उसमें आपको मिल जाएगा। कभी कभी आपको शेयरिंग मिल जाएगा, कभी आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आपको Okay. अगर कॉल करके बुक भी करना है तो वैसे फिर हमारे पास कॉन्टेक्ट भी है उनके, आपको कॉल करके आप उनको बुला के भी आप कर सकते हैं। And how much they charge? Like वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो अभी जैसे इको आती है तो 1200 रुपया को चार्ज करते हैं, बट अगर रिक्शा से आओगे तो 500, 600, 700 रुपए में हो जाता है। अच्छा. तो वो रीजनेबल है एक्चुअली देखा जाए तो, रादर कॉलिंग अ कार और व्हीकल एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि वो फिर वो टू एंड फ्रो चार्ज करता है ना, इसीलिए डबल हो जाता है। उससे जो लोकली वहां पे जो भी है उसको सामने सामने पूछ लेने का, बार्गेन करने का और क्लोज कर डालने का। तो बेस्ट इज टू रीच एट इगतपुर। Okay. Also, Igatpuri, which I forgot the name of the stay where we are gonna stay. जयसिन रिसोर्ट, जयसिन रिसोर्ट, Jaisin Resort. Okay. जयसिन रिसोर्ट। तो आप वहां से आओगे तो मैं आपको सारा डिटेल्स मोबाइल पे दूंगा, Okay, okay. और वो सब चीजें, तो आप वहां पे डायरेक्ट आ सकते हो। ओके, Okay. तो इधर कम फ्रॉम इगतपुरी और कम फ्रॉम गोटी। Okay. अगर आप दोनों साथ में आ रहे हो तो कम बाय ट्रेन टू इगतपुरी, और दोनों साथ में का तो आपका शेयरिंग हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जाने में भी वैसे ही कर लो, इजी हो जाएगा। Yeah. या फिर सम I लाइक don't have कोई बंदा मतलब ऐसा भी होता है कि ये सब झंझट मारी करने से सीधा ओला बुक करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम Yeah, I'll prefer that only, like getting डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई ओला से डायरेक्ट आप साइट पे, तो आई थिंक कुछ 1,500-2,000 रुपए चार्ज होता है मैक्स, बट पूरा एंड टू एंड ट्रैवल हो जाता है आपका। रिटर्न में भी आप ओला बुक कर सकते हो, अगर आप जल्दी बुक करते हो, मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास अगर देखते हो, सर्च करते हो ना, तो आप ओला बुक हो जाती है, क्योंकि रिटर्न 11 बजे के बाद चालू होती है, क्योंकि मॉर्निंग में काफी लोग नासिक जाते हैं Yeah. कार से, तो रिटर्न में वो 11-12 बजे के बाद फ्री होती है गाड़ी, तो रिटर्न आती है, तो दे पिक अप द पैसेंजर्स। तो वो Okay. ड्राइवर को आपने जैसे आपका कंफर्म हो गया ना, वो ड्राइवर को कॉल करके बोलना है कि भाई मुझे 4 बजे जाना है, आप रुकने वाले हो क्या कैंसिल करोगे?
तो नॉर्मली वो बोलेगा मैं खाली आ जाऊंगा तो मैं रुकता हूँ 2 मिनट 1-2 घंटे के लिए और फिर लेके जाता हूँ पैसेंजर, क्योंकि वैसे भी उसका डे तो खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट भाई, रिटर्न जाने के लिए भी उसको 4 घंटा लगने वाला ही है। तो खाली जाने से अच्छा पैसेंजर लेके जाऊंगा, रिसोर्ट पे आके थोड़ा टाइम फ्रेशन अप होके आई विल गो बैक, थोड़ा आराम कर लूंगा, ऐसा सोच के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ड्राइवर आ जाते हैं वहां पे। ओके, तो दीज आर द ऑप्शंस, मतलब यू कैन शेयर दैट आल्सो, ओला भी आप दोनों शेयर कर सकते हो अगर पॉसिबल है, अगर आप लोग ने कर लिया तो दैट इज आल्सो। ग्रुप बनाने का एडवांटेज भी यही है कि आप पहले से एक दूसरे से अंडरस्टैंड कर लो ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, सो क्लियर राइट, ट्रैवल का तो आपका कोई अभी क्वेश्चन नहीं? वॉइस इज ब्रेकिंग। मैं पूछ रहा हूँ अभी ट्रैवल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है राइट? नहीं, कोई जस्ट हैव टू कंफर्म। Okay, ATC should be informed for any RPAS operation prior to commencing the operations. यानी कि आप बिफोर आपका जो भी शेड्यूल ऑपरेशंस है, 10 बजे का ऑपरेशन है, तो आप उसको प्रायर कम्युनिकेशन करो, प्रायर करो, आप डिस्कस, प्रायर इन्फॉर्म करो उनको। ओके, टेक देयर कंकरेंस एंड देन डू एक्चुअल ऑपरेशन एक्टिविटी। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ATC प्रोसीजर इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरप्शन टू द मैन्ड एयरक्राफ्ट ट्रैफिक। यानी कि अगर आपका 10 बजे का फ्लाइट है, सॉरी 10 बजे का आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो वो टाइम पे ATC देखेगा कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो पर्टिकुलर लैटिट्यूड में, वो पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड में, वो पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे एनी मैन्ड एयरक्राफ्ट का पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और दे विल हैव दैट प्री प्लानिंग टू बी डन बिकॉज यू आर गोइंग टू फ्लाई अ ड्रोन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो प्रॉपर ATC भी प्रिपेयर्ड रहेगा। ओके, द आइडिया ऑफ प्रायर information is only for this. Okay, each RPA operator, that is remote pilot aircraft operator, must be in two-way communication with ATC. That means you should constantly in communication with the ATC, two-way communication में होना चाहिए। RPA pilot should be aware of the airspace and the restrictions imparted in it while operating the RPA. यानी आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आप येलो जोन में फ्लाई कर रहे हो तो वो मैन्ड एयरक्राफ्ट स्पेस है, तो उसमें हमेशा प्रायोरिटी मैन्ड एयरक्राफ्ट का है। एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ATC हैज टू बी फॉलोड रिलीजियसली। तो कैन नॉट से कि वो बोल रहा है आपको डिसेंड करो तो आप डिसेंड करना है, अब डिसेंड बोल के आप डिसेंड नहीं करोगे तो इट विल बी पेनलाइजेशन एक्शन, राइट? शायद आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो यू हैव टू फॉलो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द थिंग। अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ चीजें आपने, अगर आपको नहीं समझ में आया, ATC क्लियर बोलता है, अगर आपको नहीं समझ में आया यू आस्क, एज सिंपल एज दैट। ओके, रिपीट। तो रेडियो टेलीफोनी बेसिक्स, RT provides means by which pilots and the ground personnel communicate with each other. The information and instruction transmitted are vital importance in a safe and expeditious operations of aircraft, personnel involved in operation and people on ground. तो ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, here we should not take it very lightly. Okay, we need to be very precise, we need to be very serious, we need to be very careful in what we are communicating, what actions we are performing, all that things. Anywhere we have an ambiguity, doubt, clarify नहीं हो रहा है, please ask again. Okay, जहाँ पे भी आप, दूसरा चीज आप इम्पोर्टेंट है, आप पायलट इन कमांड हो तो आपको सही चीजें मालूम है। ATC रिमोट बैठा हुआ है, उसको मालूम नहीं वहां पे क्या हो रहा है, वो उसके रडार के स्क्रीन पे देख के आपको बोल रहा है। और जितना आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करोगे, जितना अच्छी तरह से आप इन्फॉर्म लोगे और उसका इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर लोगे, उतना अच्छा आप फ्लाई कर पाओगे और इतना स्मूथ फ्लाई कर पाओगे। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द ATC प्रॉपरली एंड क्लियर। ओके, और जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। ओके, गलती मत करना, नहीं दबाना था ऐसा मत करना। ओके, जैसे अभी वो अहमदाबाद फ्लाइट में चल रहा है ना कंसर्न की, वो स्विच उन्होंने बंद कर दिया, बट वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि आपने वो स्विच निकाला और बंद, बिकॉज इट इज नॉट लाइक ए टॉगल स्विच नहीं है वो स्विच को आपको खींचना पड़ता है बिकॉज इट्स अ स्प्रिंग लोडेड स्विच, इट्स नॉट अ स्प्रिंग लोडेड स्विच। वो जब तक आप खींच के उसको बंद नहीं करता तब वो बंद नहीं होगा, ऐसे गलती से भी बंद नहीं हो सकता है, या हाथ लग गया ऐसा भी नहीं हो सकता है। ओके, वो स्प्रिंग लोडेड स्विच था तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो डिबेट चल रहा है अभी, कैसे कैसे बोला, दोनों जन पायलट बोल रहे नहीं करना है, दोनों पायलट बोल रहे नहीं किया है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो ये हुआ कैसे, यू नो, कि दोनों इंजन को पावर कट ऑफ कैसे होता है, ये फ्यूल कट ऑफ कैसे हो सकता है?
वो भी टेक ऑफ के टाइम, टेक ऑफ मतलब पूरा भी हुआ नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो। Okay, so radio telephony RT techniques or the radio communication must be carried out in the following manner through RT phonetics, RT phraseology to understand RT frequency spectrum. Okay, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको सर्टन फ्रेजोलॉजी, जैसे हम लोग देखो कभी कभी हम लोग मोबाइल पे बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, डी फॉर दिल्ली, एन फॉर नागपुर, पी फॉर पुणे, ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं ना। तो वो क्या है, दिस इज बेसिकली वी आर कम्युनिकेटिंग सो दैट पर्सन अंडरस्टैंड मोर इफेक्टिवली। सो हम लोग अल्फाबेट्स को फोनेटिक्स में कन्वर्ट कर जो राइम कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल बोला तो हमको समझ में आता है ए से चालू होता है एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, या डी फॉर दिल्ली बोलते हैं हम लोग, राइट, सी फॉर चेन्नई बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग सिटीज का नाम बोलते हैं जब कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ। बट इन aviation world there is a certain phonetics, a certain phraseology which we need to use, which is used by aviators and the ATC people. Okay, that is called as RT phraseology. Okay, so what is that RT phraseology? A for alpha, B for bravo, C for charlie, C for delta. ये अल्फाबेट्स जो है A से लेके Z तक, इनके हर अल्फाबेट का एक वर्ड है। जैसे Z for Zulu, Y for Yankee, W for whiskey, V for Victor, U for uniform, T for tango, S for Sierra, R for Romeo, like that. So all these words you should know by heart. Okay, एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से प्रैक्टिस हो जाता है। अभी जब वर्ड्स जैसे आप A for अल्फा बोलते हो, B for ब्रावो बोलते हो, नंबर भी बोलते वक्त आप ऐसे नहीं बोलोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना है 1912, ओके, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 1912। You never say the word numbers in this form, right? 1912 ऐसा नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं 1912। ओके, सो यू हैव टू कॉल इट नंबर्स, यू हैव टू कॉल इट नंबर्स। ओके, 1912 ऐसा ईच नंबर को आपको कॉल करना है। ओके, डोंट कॉल इट द नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम लोग जैसे कॉल करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज कॉल इट एज अ नंबर, ईच नंबर एज अ इंडिविजुअल। ओके, 100 को 100 नहीं बोलना है, 100 बोलना है, या 200 बोलना है, 2020 ऐसा बोलना है, 2025 ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट। अगेन द सेम स्लाइड टॉकिंग अबाउट अल्फा ब्रावो चार्ली यांकी जुलो। ओके, और एक कम्युनिकेशन मोड है जो मॉर्स कोड है, जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम अ ड्रोन पर्सपेक्टिव, बट दिस इज अ मोर्स कोड विच इज बीन यूज्ड। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी यूज होता है, या मिलिट्री कम्युनिकेशन, या बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, खुफिया कम्युनिकेशन, व्हाट वी कॉल एज people should not know what you are communicating on. So normally you will earlier people used to send in a Morse code format. Okay, so you need to interpret the words in form of Morse. जैसे कि अगर मुझे A बोलना है तो A को क्या मैं बोलता हूँ डॉट, राइट, I को बोलना है डॉट डॉट, ओके, या फिर N को बोलना है तो डैश डॉट, ओके, या नंबर बोलना है तो डैश डॉट डैश डैश डैश, ओके, लाइक दैट। So there is a way to communicate to Morse code. Even to learn the Morse code, it is not, it starts with A. आपको Morse code सीखना है तो पहला वर्ड आपको सीखना पड़ता है, वर्ड इज E. E is dot, और दूसरा वर्ड है T. T का है डैश। तो पहले आप सिंगल अल्फाबेट सीखते हो, सिंगल Morse code वाले अल्फाबेट सीखते हो, जैसे E और T। ओके, सो E is dot, T is dash। फिर उसके बाद आप डबल वाले सीखते हो, जैसे I है और दूसरा है आपका M। ओके, डॉट डॉट डैश डैश। तो ये ऐसा एग्जांपल है। देयर आर लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल व्हिच यू कैन डाउनलोड ऑन योर मोबाइल एंड यू कैन लर्न। ऑलमोस्ट आपको 1 महीना लगेगा टू लर्न ऑल द मोर्स कोड एंड प्रैक्टिस। ये आपको कभी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपने आरटीआर का लाइसेंस निकालने का सोचा, कि आपको फ्यूचर में बीवीएलएस जब आता है तब बीवीएलएस के साथ आरटीआर का लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट आएगा, तो तभी आपको ये मोर्स कोड सीखना पड़ेगा। बट मोर्स कोड आरटीआर में भी सेकंड लेवल पे है, यानी कि फर्स्ट लेवल आप एग्जाम हो गई, आपको आरटीआर का लाइसेंस मिल जाएगा। आपको हायर ग्रेड लाइसेंस चाहिए जिसमें मोर्स कोड का इंपॉर्टेंस है, तभी आपको मोर्स कोड सीखना पड़ेगा। ओके, अभी फ्रॉम अ ड्रोन पर्सपेक्टिव यू डोंट रिक्वायर टू लर्न एनीथिंग अबाउट मोर्स कोड, सो यू कैन सिंपली इग्नोर दिस स्लाइड ऑल्सो, जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, Okay. नाउ व्हेन वी सी द अर्थ, अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जब हम लोग अर्थ को देखते हैं तो अर्थ पे हमने क्या किए, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट
सर्कल्स और सेगमेंट्स में ड्राइव किया। तो अगर आप देखोगे सेंटर लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, और इक्वेटर से एवरी लाइन देयर इज अ स्पेशल्स, राइट? ओके, तो एवरी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री मैंने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो दोज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। ओके, सिमिलरली वर्टिकल लाइंस भी मैंने ड्रॉ की है अर्थ के सरफेस पे। स्टार्टिंग इज माय प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन पासेस थ्रू लंदन। सो जो लंदन के लाइन जो ड्रॉ होती है प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, उस लाइन से इंडिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन, whereas US is on the western side of the prime meridian. ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया के हिसाब से अगर बॉम्बे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछता हूँ, डू यू नो व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ मुंबई? पता है आपको? हम गूगल मैप्स यूज करते हैं ना डेली कम्युनिकेशन के लिए, इधर उधर जाना है तो गूगल मैप खोलते हैं। तो डू वी नो व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ मुंबई? है कभी देखा है हमने? No. नहीं, राइट? सो देखो, एज अ पायलट, ओके, एज अ पायलट यू आर सपोज टू बी अ वेरी कीन ऑब्जर्वर फर्स्ट। ओके, यू नीड टू बी अ वेरी गुड लर्नर एंड ऑब्जर्वर। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हमको लगती है लेकिन हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, राइट? तो अभी एक्चुअली जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप देखो मुंबई का जो लैटिट्यूड है वो 19 डिग्री है, लॉन्जिट्यूड है वो 72 डिग्री है। Okay, so that is a position on the map where the Mumbai is located or Mumbai is located. Similarly, if I go to let's say Delhi is somewhere around 29 latitude. Okay, Ukraine is somewhere around 45, Moscow is around 52, London is 52. North Pole पे आप खड़े हो, it will be 90 degree. Okay, so like that. So equator पे खड़े हो तो 0 डिग्री होगा। इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका डिग्री बढ़ता जाएगा, नीचे जाओगे तो माइनस में आ जाएगा आपका, है ना, -10, -20, -30, -90 यानी टुवर्ड्स द साउथ। सिमिलरली लॉन्जिट्यूड भी आपका प्राइम मेरिडियन पे 0 होता है और फ्रॉम देयर एवरी 4 मिनट्स इट विल बी 1 लॉन्जिट्यूड विल बी देयर। तो हम लोग 72 लॉन्जिट्यूड पे है बॉम्बे के हिसाब से। ओके, तो जब भी हम फ्लाई करते हैं तो हमें हमारे लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए। अगर मैं मुंबई में ड्रोन फ्लाई कर रहा हूं तो आई हैव टू टेल द ATC दैट माय लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इज दिस इज द डायमीटर ऑफ माय फ्लाइंग 2 kilometers or 3 kilometers and around let's say 1000 feet I am going to fly my drone. Okay, बहुत ऑब्वियस, क्योंकि 400 के ऊपर जा रहे हो तभी तो आप येलो जोन में जाओगे, तभी आप ATC के साथ कम्युनिकेट करोगे, राइट? तो नेचुरली आपका 400 फीट के ऊपर ही रहेगा, तो 1000 फीट 2000 फीट वट एवर इट इज योर ऑपरेशनल एक्टिविटी जो भी रहेगी उसके हिसाब से आपको आपका एल्टीट्यूड बताना पड़ेगा एज पर योर ऑपरेशन। ओके, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे एनी क्वेश्चंस? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ये हमारा ज्योग्राफी का बुक्स में था 10th स्टैंडर्ड के, राइट? तो नाउ लेट्स सी द RT फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो, अगर देखा जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इज अ क्वाइट वास्ट फ्रीक्वेंसी। Okay, it starts with from like 3 kilohertz to 3000 gigahertz. Okay, so lower the frequency, the higher the wavelength. Okay, lower the frequency, higher the wavelength. Higher the frequency, lower the wavelength. Okay, so देखो आप यहाँ पे देखो आपका फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ा है। 100 किलोमीटर का वेव है, एक वेव 100 किलोमीटर का है। ओके, तो ये कहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होती है? मरीन टाइम रेडियो में, नेविगेशन में, मरीन टाइम रेडियो नेविगेशन यानी शिपिंग इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। जहाँ पे आप मतलब एक बार, एंड दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डजंट रिक्वायर्ड मच पावर। छोटा सा बैटरी से क्या पावर करके वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो। इसलिए आपने देखा है कि वर्ल्ड वॉर में 1 या 2 में वॉइस ब्रेक हो रहा सर, वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में प्लेटून जो होता था उसके अंदर एक बंदा रहता था जिसके बैक पे एक रेडियो लगा हुआ रहता था, राइट? वो रेडियो अभी वो लोग अभी जब फाइटिंग करने जाते थे महीना 2 महीना 3 महीना चलता था। तो अभी वो रेडियो को पावर कहाँ से मिलेगा? तो उसमें एक छोटा सा बैटरी रहता था और उसमें एक जनरेटर रहता था जो उसको घुमाते थे, जिससे वो बैटरी चार्ज होती थी सर्टेन पीरियड के लिए। ओके, और फिर वो कम्युनिकेट करते थे। जैसे वो बैटरी खत्म हो जाती वापस उसको घुमाने का, वापस चार्ज करने का, वापस घुमाने। सो डायनामो विद बैटरी एंड ऑल दैट वैसे करके वो बनाया था डिवाइस। तो उसमें वो पावर ज्यादा नहीं लगता है, पावर बहुत कम लगता है इन दैट
स्मॉल बैटरी रहता था, पावर देता है, और वो आपको फ्रीक्वेंसी और हायर, आपका कैसा है, लोअर फ्रीक्वेंसी हायर वेवलेंथ पे ट्रांसफर हो रहा है। भले वो थोड़ा सा वीक सिग्नल है बट फिर भी सिग्नल पास होता है। अगर आपने टावर्स लगाए, प्रॉपर एंटीनास लगाए, तो आप वो रिकवर कर सकते हो सिग्नल्स, ओके, लिसन कर सकते हो। तो ये आपका लो बोलते हैं ना, लो वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ का है। बट जैसे ही आप टुवर्ड्स द राइट साइड जाओगे, ओके, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, एचएफ इज हाई फ्रीक्वेंसी, तो आपका यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। 100 किलोमीटर, 300 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, 300 किलोहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 30 megahertz, 300 megahertz, 3 gigahertz. So your frequency is increasing. Automatically आपका क्या हो रहा है, वेवलेंथ छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर का एक वेव था, यहाँ पे वेव का साइज कितना है, 1 मीटर, यानी इतना सा ही वेव है। ओके, जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, आपका वेवलेंथ देखो छोटा हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, एक छोटा सा वेव, छोटा वेव। फॉर these waves, these high frequency waves, लो वेवलेंथ रिक्वायर्स वेरी हाई पावर। तो इसके लिए देखो आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें वो बैटरी सेल डालना पड़ता है, AA AAA सेल्स डालने पड़ते हैं आपको, या टेलीविजन को आपको डायरेक्ट पावर लगाना पड़ता है। तो दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, द ट्रांसमिशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्स मच पावर, तो आपको पावर देना पड़ेगा। आपके मोबाइल भी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसलिए आपको मोबाइल कंटिन्यूस, आपको बैटरी आपका खाता है ना, क्योंकि वो हमेशा टावर के साथ कम्युनिकेट होता रहता है, हैंडशेक होता रहता है उसका कंटिन्यूस, तो उसमें आपका बैटरी कंज्यूम होते रहता है। ओके, तो आपका बैटरी का डिग्रेडेशन क्यों होता है, क्योंकि मोबाइल इज कंटिन्यूअसली डूइंग हैंडशेक विद द टावर्स। आप घर पे हो या फिर आप ट्रैवल, जब देखो आप घर में, आप मोबाइल ऐसे ही रखो, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, बिकॉज एक ही पोजीशन पे है, एक ही लोकेशन पे है, एक ही टावर से कम्युनिकेट हो रहा है। बट अगर आप सपोज ट्रैवल में जा रहे हो, यहाँ से मुंबई से पूना जा रहे हो, आप देखो वो टाइम पे आपका मोबाइल का जो बैटरी है ना, ड्रेनिंग जल्दी होगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली हैंडशेक करना पड़ता है। तो वो कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजेगा, रिसीव करेगा, भेजेगा, रिसीव करेगा, भेजेगा, रिसीव करेगा, अलग अलग टावर के साथ कम्युनिकेट करता रहेगा, बिकॉज योर पोजीशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो आपका बैटरी तभी जल्दी ड्रेन होगा। आप सरप्राइज होगे कि अरे मैं घर में जब ड्रोन मोबाइल यूज करता हूँ तो मेरा बैटरी पूरा 1.5 दिन तक चलता है, लेकिन आज मैं पूना आ रहा हूँ तो मेरा बैटरी इतना जल्दी क्यों ड्रेन आउट हो रहा है। अब नॉर्मली मैं तो यूज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन भी नहीं किया किसी को, आई एम नॉट स्पोकन टू एनीबॉडी आल्सो, आई एम जस्ट फोन पॉकेट में है, फिर भी मेरा फोन इतना जल्दी ड्रेन हो रहा है। व्हाई इट इज ड्रेनिंग, because it is continuously communicating with the tower, the handshake is happening, sending some signal, some inputs, right, location, maybe उसमें GPS एक्टिवेट हुआ, आपने अगर ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब चीजें भी ऑन किया, तो ये क्या होता है, ब्लूटूथ वाईफाई आपने अपने घर के लिए कॉन्फ़िगर किया, वो पनवेल जाता है तो पनवेल में भी ये ढूंढते रहता है आपके घर का वाईफाई, उसको मिलता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्ट करते करते। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं आप ट्रैवल में जा रहे हो तो आपका वाईफाई बंद कर दो, ब्लूटूथ आप बंद करके रखो, ताकि वो कंटिन्यूअस जो ट्रांसमिशन होता रहता है रिसीव करने का, वो नहीं होगा, वो हैंडशेक नहीं होगा, तो आपका बैटरी कंज्यूम लेस होगा। ओके, सो हायर द फ्रीक्वेंसी, मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम, लोअर द वेवलेंथ इट वुड बी। ओके, तो आपका ड्रोन का जो कम्युनिकेशन है वो होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे देखो यूएचएफ, टेलीविजन, मोबाइल फोन, जीपीएस, वाईफाई, 4G, ये जो है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन पे वाईफाई, ये जो सेगमेंट है इसमें फ्रॉम हियर, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपका रिमोट कंट्रोल और ड्रोन कम्युनिकेट करते हैं। विच फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसी यू नीड टू रिमेंबर, वन इज 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड आपका जो वीडियो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो 5.8 गीगाहर्ट्ज पे हो रहा है। ओके, तो ये दो फ्रीक्वेंसी आपका ड्रोन यूज कर रहा है फॉर कम्युनिकेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एटीसी आपको बोलेगा कि ये सर्टन फ्रीक्वेंसी लेवल पे आप कम्युनिकेट करो या सर्टन फ्रीक्वेंसी आप करो, बट नॉर्मली सिंस यू आर जस्ट अ ड्रोन पायलट, यू आर नॉट अ आरटीआर ऑपरेटर, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, वो आपको लैंडलाइन नंबर देंगे कॉल करने के टू कम्युनिकेट। ओके, so you have to have communication with the ATC on lantern until unless you are RTR certified pilot. Okay, so let's see now how we are communicating with ATC. तो जब भी आप ATC के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ड्रोन का ऑपरेशंस के लिए इन अ येलो जोन, you need to make sure that you are communicating to them in a form of a certain terminology. तो आप जैसे आप कॉल करते हो ATC को तो पहले आपको वर्ड बोलना है अनमैन्ड। क्या वर्ड बोलना है? अनमैन्ड। देन यू हैव टू से आरपास का सीरियल नंबर यानी यूआईएन नंबर। ओके, यूआईएन नंबर आपको बोलना है।
उसके बाद आपका लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और रेडियस, वो जगह का जहां से आप ऑपरेशंस करने वाले उसका लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और रेडियस ऑफ ऑपरेशन, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी रहेगा। और दूसरा एल्टीट्यूड, बेस से सीलिंग तक कितना हाइट पे आप फ्लाई करने वाले हो ड्रोन को। बट ऑब्वियस जब येलो जोन में आप फ्लाई कर रहे हो तो 400 फीट के ऊपर ही होगा, तो 400 मतलब आपका नॉर्मली 500, 600, 700, 800, 900, 1000, वट एवर इट इज, जो भी आपका ऑथोराइज फ्लाइट प्लान है उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट करोगे आपका एल्टीट्यूड। तो यू विल से टू एटीसी अनमैन्ड यूआईएन नंबर ABC 123 वट एवर इट इज। लैटिट्यूड आप बोलोगे, जो भी आपका लैटिट्यूड रहेगा 19 डिग्री, 72 डिग्री नॉर्थ, है ना, 72 डिग्री ईस्ट। ओके, एल्टीट्यूड इज 1000 फीट। स्टार्ट टाइम इज 10 AM to 12 नून। 2 घंटे का मेरा एक्टिविटी रहने वाला है, ऐसा आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, वट एवर इट इज, जो भी अपने फ्लाइट प्लान में डाला रहेगा। ओके, so that you need to communicate. ATC will validate, take a note of all your information, and then they will communicate to you that okay, good to go, and call at the time of your operations. तो वापस आपको 10 बजे कॉल करना है जब आप फ्लाई कर रहे हो तब। तो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहना है आपको, और आपको ATC के साथ लगे रह के आपको फ्लाई करना है ड्रोन। ओके, सो ऑपरेटर नीड्स ATC with exact latitude, longitude, radius with the altitude from base to ceiling. Yes, Parth. Sorry, Kundan. Like whenever, like if we are contacting ATC, like we need special permission, right? Yes, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब अप्रूवल लेते हो ना तभी आपको बताया जाता है कि कौन से ATC को कौन से नंबर पे कॉल करना है। Okay. Then only you are to start communicating. But they entertain private sector or no? Just public sector. Sorry, I didn't get you. Private क्या? Like if you're going from any private company and you want to do something through drone, so they give you permission or no? Like it depends on their रिक्वायरमेंट पे, आपके रिक्वायरमेंट पे आप क्यों कर रहे हो फ्लाई, येलो जोन में क्यों फ्लाई कर रहे हो उसके ऊपर है। Okay. ओके, येलो जोन में आप क्यों फ्लाई कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट पे है। इफ दैट रिक्वायरमेंट इज जस्टिफाइड दे विल गिव यू परमिशन, Okay. or else they will tell you what is needs to be done to get the permission. Okay. या फिर they will tell you why it is not to be given permission also. They will tell you what it is. Okay. Okay. एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, जरूरत है, तो आपको परमिशन मिलेगा। Okay. मिलेगा। आप ऐसे अगर मैं ऐसे ड्रोन लेके और DJI ड्रोन लेके जाऊंगा और येलो जोन में फ्लाई करने के जाऊंगा, नहीं मेरे को पता देगा। Yeah. Okay, he will not say। वो तो देगा, yeah. that No, is what but I- you're going through any like proper channel. any proper channel, proper agency, proper requirement, justified है आपका activity, हाँ. they will give you permission. Okay. Okay? अभी जैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अभी जैसे मुंबई में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग को ड्रोन फ्लाई करना है बिटवीन भिवंडी, वसई टू भिवंडी। हम लोग डिलीवरी ड्रोन का टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जो कर रहा है। ओके, उसको अभी वैसे तो उसका फ्लाइट जो है विद इन 400 फीट पे है। ओके, बट बीच में हमको एक लॉन्गर फ्लाइट टेस्ट करना था। ओके, वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फ्लाई अ ड्रोन फ्रॉम वसई टू शाहपुर। Okay. बट वसई टू शाहपुर में क्या होता है, बीच में माउंटेनस एरिया है, तो जहाँ पे हमको फ्लाइट और ऊपर उड़ाना है, मतलब मे बी वी हैव टू क्रॉस अबाउट 400 फीट। ओके, सो इन दैट सिनेरियो आई हैव टू क्रॉस द नॉर्मल ग्रीन जोन टू येलो जोन। Hello. जोन में फ्लाई करना है तो मुझे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो हमने वो अप्रोच किया था परमिशन के लिए, लेकिन हमको टेस्टिंग के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। They said that you don't do that flight, you go outside green zone and fly and test it out. Okay. Okay, तो वहाँ पे फ्लाई मत So it's करो। not easy, like yeah. नहीं, हमको परमिशन नहीं मिला। Yeah. ओके, क्योंकि उनका जेन्युइन था। अगर ये मतलब ऐसे है ना, आप एक बार परमिशन दे भी लोगे, एक बार दोगे तो फिर हर किसी को देना पड़ेगा। Okay, so Exactly. they want to avoid also some location, they want to avoid also. So they Yeah. suggested that you don't fly, you fly somewhere far off, go beyond Okay. Shahpur, something like that. Okay, so radio communication on airband frequency is only allowed for operator who is certified to operate the wireless RT equipment with valid RTR, FRTR issued by WPC or DTC. यानी कि अगर आप लाइसेंस ऑपरेटर हो तो ही वो डिवाइसेस आप एप्लीकेबल यूज कर सकते हो। जैसे वो वॉकी टॉकीज होते हैं या आरटीआर की कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, राइट। तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है, स्पेशल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होता है,
वो अगर आपने लाइसेंसिंग किया होगा तो ही आपको अलाउड है, नहीं तो आपको आरटीआर कम्युनिकेशन नहीं करना है। आपको नॉर्मल आपको लैंडलाइन से कम्युनिकेशन करना है। और आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी आपको यूज करना है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड दिस फ्रेजोलॉजी इज बीन यूज। जो अल्फा ब्रावो चार्ली वाली जो फ्रेजोलॉजी है, वर्ल्ड वाइड सब लोग यही यूज करते हैं। ओके, थोड़ा बहुत माइनर एक दो वर्ड का किधर किधर डिफरेंसेस है, जैसे जर्मनी, कनाडा, ऐसे लोकेशन पे थोड़ा सा एक दो वर्ड्स को कुछ और बोलते हैं वो लोग। फ्रेंच और जर्मनी। हाँ, फ्रेंच भी सेम ही यूज करता है मोस्टली। जर्मनी, कनाडा में हमने देखा है, ब्राजील में देखा है। ओके, ये इको लोकेशन पे एक मतलब सारे नहीं, एक आध दो वर्ड को कुछ अलग बोलते हैं। अभी मुझे भी पता नहीं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। English language. So that's why it says that standard phraseology is used throughout global with minor differences with respect to different region. Okay, so region के हिसाब से मैंने भी कनाडा में थोड़ा सा माइनर एक दो वर्ड का प्लस माइनस है, बाकी सब सेम है। ए फॉर अल्फा ही है वर्ड में, हर कहीं पे भी आप बोलोगे ना ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो ही है। ओके, कोई तो एक आध वर्ड बीच में चेंज हुआ है। ओके, कहीं पे तो मेरे ख्याल से एस या टी कुछ तो वर्ड डिफरेंट बोलते हैं कहीं कहीं जगह। ओके, वही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो फ्लाइट प्लानिंग प्रोसीजर्स। अभी ये कैसे ना, आप येलो जोन में फ्लाई कर रहे हो, राइट। ग्रीन जोन में आपको फ्लाइट प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, अनमॉनिटर्ड अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया है। बट येलो जोन में कैसे है ना, आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको फ्लाइट प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एरोप्लेन फ्लाई करना है फ्रॉम मुंबई टू जयपुर या मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू अहमदाबाद, किधर भी फ्लाई करना है, मैं डेली फ्लाई कर रहा हूँ फ्लाइट, मेरे को डेली फ्लाई करना है, मेरे को डेली फ्लाइट प्लानिंग करना है। मेरा फ्लाइट प्लान मेरे को एक दिन पहले 24 घंटे पहले सबमिट करना पड़ता है। फ्लाइट प्लान अगर मेरा अप्रूव्ड है तो ही मैं फ्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो सिमिलरली फॉर ड्रोन आल्सो इन येलो जोन योर फ्लाइट प्लान हैज टू बी अप्रूव्ड। अगर वो अप्रूव्ड है, आपके पास परमिशन है, तो ही आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो फ्लाइट प्लानिंग ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज नेसेसरी। अभी ये चेंज हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अभी नया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो नया प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है वो लेटर आप there will be a document coming on that line. Okay, so all the landing zones अगर आप कोई फ्लाई कर रहे हो, अभी देखो अभी ये एप्लीकेबल, ये ट्रेनिंग में हमको ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्सपेक्टिव, ओके, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। तो ऑल द लैंडिंग जोन, जैसे आपने अभी सपोज ड्रोन यहाँ से फ्लाई कर रहे हो, वसई से फ्लाई कर रहे हो गोइंग टू भिवंडी, तो अगर भिवंडी में जा रहा है तो सपोज बीच में मेरा बैटरी लो हो गया या बीच में मेरा जीपीएस सिग्नल कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास इमरजेंसी लैंडिंग या कुछ तो ऑप्शंस होने चाहिए ना बीच में ऑन द फ्लाइट प्लान। तो ऑल दैट प्लान नीड्स टू बी प्लान्ड प्रायर, दे नीड्स टू बी अप्रूव्ड, दे नीड टू बी रेडी। सिमिलरली जैसे अगर मैं फ्लाइट प्लान कर रहा हूँ मुंबई टू दिल्ली, तो मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट कर रहा था, वो पर्टिकुलर पाथ पे व्हाट आर द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स, ये मुझे एज अ पायलट पता होने चाहिए और मेरे फ्लाइट प्लान में डिक्लेयर करना पड़ेगा what are the nearest flights, nearest airport from my flight plans. Yes, Parth. Like you said, if something happens in between the flight, but in DJI drones, whenever if the battery is low, I think it returns to the home point automatically. If I am flying a drone which is on low battery. So अभी समझो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ. अभी आपने आपका एग्जांपल ना एकदम सिंपल एग्जांपल होगा। अभी आपका ड्रोन का जो बैटरी है 3S बैटरी 40 मिनट्स फ्लाई कर रहा है, कैपेसिटी उसका 40 मिनट्स है, करेक्ट? आपने फ्लाई किया 30 मिनट्स फ्लाई किया कंटिन्यूअस, राइट? ड्रोन एक सर्टेन डिस्टेंस पे चला गया, हाँ. ओके, अभी आपका ड्रोन के पास सिर्फ 10 मिनट्स का बैटरी लाइफ बचा हुआ है, ओके, और उसमें आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है 10% व्हाट इज दैट 20%। हाँ. अगर बैटरी लो हो जाता है तो आरटीआर होना चाहिए। तो आपके पास अभी बैटरी कितना बचा है? 10 मिनट्स का। आपने वहां तक पहुंचने के लिए 30 मिनट्स लगाया, क्या 10 मिनट्स में रिटर्न आ पाओगे? नहीं, राइट, नहीं आ पाओगे। सो दैट इज इफेक्टिव प्लानिंग, यू नीड टू डू इट। तो वैसे ही हम लोग का ना एक रहता है फ्लाइट, अब जब एरोप्लेन फ्लाई करते हो एक सर्टेन लिमिट तक आप बोलते हो रिटर्न टू बेस आ सकते हो या रिटर्न टू लॉन्च आ सकते हो, ओके। एक पोर्टेशन आप पार करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज नो फ्लाइट रिटर्न पाथ, यानी आप उधर से रिटर्न नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास उतना फ्यूल बचा ही नहीं है रिटर्न आने के लिए। आपको आगे ही बढ़ना है, आपको नियर में लैंडिंग करना पड़ेगा। सो इन दैट सिनेरियो आपने जो एग्जांपल दिया ड्रोन का,
उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नियर बाई लोकेशन पे आपको ड्रोन को लैंड करना पड़ेगा, ओके या फिर आपको वैसे प्लान करना पड़ेगा। तो आपका नॉर्मली थ्रेशोल्ड हम लोग क्या सेट करते हैं, 50%। ओके 50% के अगर आगे जाता है तो अगर मुझे अलर्ट आ जाए तो मैं समझू कि भाई मुझे ड्रोन को वापस लाना है, नहीं लाना है, क्या करना है, कैसे करना है। आई हैव टू प्लान माई फ्लाइट, Depends on the pilot. Yeah. डिपेंड्स तो अपॉन माई फ्लाइट। अगर मैंने इमरजेंसी लैंडिंग की फॉर एग्जांपल 20% बैटरी और मैं बहुत दूर हूँ, ड्रोन दूर है बहुत, क्रैश हो जाएगा अगर आपने उसने किया तो रिटर्न में ओके नहीं पहुंच पाएगा ना, वो क्रैश हो जाएगा फिर। नो 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 इफ आई डू इमरजेंसी लैंडिंग, तो आप लोकली, हाँ वहाँ पे कहीं पे हाँ वहां पर ही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं वापस मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। आप लैंडिंग करके वहाँ पे क्या करते हो ना, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएगा ना, जीपीएस मैं वही कोऑर्डिनेट्स, पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हाँ जीपीएस कोऑर्डिनेट से आप उसको ट्रैक कर, हूँ, लाइक फ्लैट लैंड देख के मैं लैंड कर सकता हूँ वहाँ पर इमरजेंसी लैंड। नॉर्मली वही करते हैं, नॉर्मली ओके वही करते हैं। यू आर सपोज टू लैंड द ड्रोन सेफली ओके rather getting it crash, you should सब, तो इसीलिए आपको वो रिटर्न पाथ भी आपको प्लान करना है कि भाई मैं कितना दूर जा सकता हूँ। 40 मिनट्स अगर मेरा फ्लाइट है, तो टाइम है, तो 40 मिनट्स में से पहला अगर 40 को डिवाइड करोगे बाय 100, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो एवरी आई वुड से व्हाट से 10% इज योर 4 मिनट्स, राइट? तो आप 10%, आप 10 या 20% आप बफर रखोगे, फिर आप 80% यूटिलाइज करोगे, तो 80% का हाफ, यानी कि आप कितना 40% ही आप यूज कर रहे हो बैटरी फॉर फ्लाइंग एंड कमिंग बैक, रिमेनिंग दैट 10% यू आर कीपिंग एज अ बफर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू इफेक्टिवली प्लान इट। क्लियर? Yes, sir. तो 100% का 100% नहीं यूज करना है, पहले 100% में से कुछ बफर रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, आपका टेक ऑफ के टाइम बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है, लैंडिंग के टाइम आपका बैटरी कंज्यूम होता है, Right. और फिर आपका एक्चुअल फ्लाइट है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट। ओके, जैसे आपका गाड़ी जब राजधानी जब बॉम्बे सेंटर से चलती है ना, जब स्टार्ट होती है ना, तो कम से कम कुछ बोलते हैं ना 200 कितना 25 लीटर डीजल खा जाती है उधर ही जगह पे ही, इंजन पावर क्योंकि उसको उतना पावर, उतना थ्रस्ट जनरेट करना पड़ता है। लेकिन एक बार जनरेट हो गया तो अब आपका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्पीड है, आपको सिर्फ मोशन मेंटेन करना है, रिदम में है, राइट? रिदम में है, राइट? सिमिलरली ड्रोन का वैसे ही है, ड्रोन को टेक ऑफ लेते हुए थोड़ा बैटरी कंज्यूम हो जाता है, लेकिन एक बार वो ऊपर आ गया, हवा में आ गया, तो वो नॉर्मल मिनिमम बैटरी पे चलता है आपका। आप अनटिल अनलेस बहुत मैन्यूअर्स कर रहे हो, रोल कर रहे हो, यॉ कर रहे हो, तब आपका बैटरी बहुत कंज्यूम होता है। अंडरस्टूड। हाँ बोलो कुंदन। जब भी अभी अपना ड्रोन समझे 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, उसका बैटरी डिग्रेड होता है, राइट? यस, तो that वैसे सिचुएशन में अपने को we will come, we'll be discussing on the battery topic also in detail. Okay, battery cycles, Okay. battery degradation, battery problems, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। We'll discuss that point in time, and all your doubts जो अभी आपके दिमाग में, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या है, वो सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ बचा तो पूछ लेना मुझे, ठीक है? चलेगा। आई विल क्लियर इट आउट। तो अभी जैसे हमारा फ्लाइट प्लान है, तो FIC ADC शुड बी टेकन, यानी फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर विच कंफर्म्स द फ्लाइट प्लान। ये नॉर्मली एविएशन के टर्मिनोलॉजीज है। अगर सिंस यू आर फ्लाइंग योर ड्रोन इन द येलो जोन, दैट्स व्हाई दिस परमिशंस नीड्स टू बी टेकन। सो ये नॉर्मली आपको ATC से परमिशन मिल गया तो ये सारा परमिशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। नॉर्मली ये जो परमिशंस है ना, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर या ADC डिफरेंस यानी एयर डिफेंस क्लियरेंस, ये सारी चीजें जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हो, एक लोकेशन से दूसरे, फॉर एग्जांपल आई एम फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान समझो, या इंडिया टू श्रीलंका, तो मैं 2 डिफरेंट FIR लोकेशंस में से फ्लाई कर रहा हूँ, FIC लोकेशन से फ्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे वो परमिशंस लेनी पड़ेगी, उसके लिए है। ओके, एंड ऑल योर फ्लाइट रूट शुड बी प्री डिफाइंड, यानी कि अगर सपोज मेरा एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मेरा फ्लाइट रूट डिफाइंड है, वो रूट को छोड़ के मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ until unless ATC gives me permissions and due to some requirement I have to alter my route, then only I have to change my route, नहीं तो मेरा प्री डिफाइंड राउट पे ही मुझे फ्लाई करना है। वो इन व्हाट सिनेरियोज, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वेदर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल या कुछ मिलिट्री वॉर जैसे सिचुएशन, जैसे अभी बीच में अभी भी शायद पाकिस्तान एयर स्पेस इज क्लोज फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट्स, राइट? तो सब अल्टरनेट रूट लेके आ रहे हैं, तो नाउ द न्यू रूट हैज टू बी प्लान्ड। नहीं तो नॉर्मली पाकिस्तान के ऊपर से हमारा एयरप्लेन फ्लाई होता था डायरेक्ट, अगर यूके जा रहा है तो नॉर्मली पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई होता था। अभी हमको गल्फ से जाना पड़ता है या फिर इधर से जाना पड़ता है, राइट?
तो देर आर Yeah. टू डिफरेंट वेज टू गो. नॉर्मली हम लोग गल्फ के थ्रू फ्लाई कर रहे हैं अभी, तो वो चैलेंजेस है अभी. स्पेशली दिल्ली वाला जो फ्लाइट्स है वो उसके लिए लॉन्गर पाथ हो रहा है अभी, Yeah. लॉन्गर ड्यूरेशंस लग रहे हैं, लॉन्गर टाइम्स लग रहा है नॉर्मल. ओके, so that's about flight planning procedures. अभी लास्ट पॉइंट है ये. दिस इज अगेन गोइंग टू कम इनटू योर वेदर एंड मेट्रोलॉजी टॉपिक, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यानी जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो या एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हो, यू नीड टू ऑलवेज कम्युनिकेट टू एटीसी अबाउट योर हाइट. ओके, सो आप कितने हाइट पे हो, तो हाइट बताने का देयर आर 3 ways. One is QFE, another is QNH and another is QNE. Okay, QFE मतलब फील्ड एलिवेशन. ओके, Q को छोड़ दो, लास्ट के 2 वर्ड्स को सिर्फ ध्यान दो. FE मतलब फील्ड एलिवेशन. फील्ड एलिवेशन यानी रनवे से आपका ड्रोन या एरोप्लेन आपका कितना हाइट पे है. ओके, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 10 meters, 20 meters, 30 meters, 100 meters, whatever it is, whatever unit you are using, use that same unit. Okay, 10 feet बोला तो 10 feet बोलो, 20 feet बोला तो 20 feet बोलो. So from the runway surface, how much height you are using? So you will say I am at QFE of 10 feet, QFE of 20 feet, QFE of 30 feet. Whatever my height is there, I am going to communicate that. Okay. अगर मैं suppose fly कर रहा हूँ, now this is not applicable for drone, the QNH and QNE, because these are more applicable when you are flying the things on the watery bodies. Okay, sea पे या फिर ocean के ऊपर fly कर रहे हो आप. Okay, तभी आपको QNH और QNE, nautical, see the N word आया, nautical word is used in sea, right? sea, आप जब पानी के ऊपर आप fly कर रहे हो, पानी के ऊपर आप बोट चला रहे हो, तो nautical word use करते हैं, right? So QNH, QNE. तो नॉटिकल हाइट जो है, जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जब अभी सपोज मैं दुबई से आ रहा हूँ, आई एम एंटरिंग मुंबई, तो मुंबई पे जस्ट शोर पे हूँ, तो शोर पे तो मुझे पता है कि मुंबई के शोर के हिसाब से मेरा सी लेवल क्या है. ओके, तो 0 सी लेवल के हिसाब से मुझे एल्टीट्यूड पता चल जाता है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, QNH. ओके, सो नॉटिकल हाइट इज 10 मीटर्स. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, मेरा रनवे जो है, रनवे का QNH इज नथिंग बट QFE प्लस द एडिशन ऑफ द हाइट ऑफ द रनवे फ्रॉम द सी लेवल. तो यहाँ पे आप देखो ब्लैक लाइन जो ड्रॉ की है, डार्क ब्लैक लाइन जो है वो सी लेवल है, मीन सी लेवल. ओके, सो मुंबई का एक सी लेवल रहेगा, एक 0 सी लेवल रहता है, राइट? क्योंकि सी लेवल आपका हमेशा ऊपर नीचे रहता है, तो एक एवरेज सी लेवल रहता है. तो वो एवरेज सी लेवल से आपका रनवे कितने हाइट पे है, सो दिस डिफरेंस प्लस QFE is QNH. समझ में आया? Yeah. So your QNH is nothing but it is near to the sea level, nearer where the land and the sea is meeting, right? At the border. Okay, जहाँ पे आपका sea और land meet कर रहा है, वो लोकेशन पे हम लोग normally QNH define करते हैं. Okay, so that is nothing but nautical height. Nautical height. Okay, और ये देखो QNF is nothing but it is called फील्ड हाइट. ओके, ये फील्ड का कितना ऊपर है आपका, मतलब ये क्या है ना, ये आपका ओशन में, अभी ओशन में आप कैसे रेफर करोगे कि आप कितने हाइट पे हो, क्योंकि वहां पे नीचे मेजर करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ओशन तो ऊपर नीचे हो रहा है, राइट? तो हाउ विल मेजर? सो दे मेजर द हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर. ओके, सो एट जीरो लेवल, जीरो मीन सी लेवल, द प्रेशर इज 1013.25 हेक्टोपास्कल. तो इसके हिसाब से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका प्रेशर लो हो जाता जाएगा. तो एवरी सर्टेन हाइट पे आपका प्रेशर चेंज होता है. तो अकॉर्डिंगली टू विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रेशर दे कन्वर्ट दैट प्रेशर इनटू हाइट. ओके, एंड दैट इज QNE. ओके, सो अल्टीमेटर विल रीड QNE रीडिंग्स. तो आपको बोलना है कि आप QNE, व्हेन यू से QNE का मतलब ATC समझ जाएगा कि यू आर इन द मिडल ऑफ ओशन और you are talking with respect to the height with respect to barometric pressure, या प्रेशर के रीडिंग के हिसाब से आप बोल रहे हो, तो आप वो टाइम का वो रेटिंग्स बताओगे. QNH बोलोगे तो समझ जाएगा कि you are nearing the land. Okay, so you are talking from a nautical height. Okay, when you talking about QFE, then means the ATC knows that you are flying over the ground. You are flying over the ground. Okay, या फिर land. So they know that it is QFE. तो इमेजिन करो आपका जो एरोप्लेन है या ड्रोन है वो ग्राउंड पे है, तो आपको QFE कितना होगा?
इमेजिन करो आपका एरोप्लेन या आपका ड्रोन ग्राउंड पे है, रनवे पे लैंड किया हुआ है, तो आपका क्यूएफई कितना होगा? सोचो। आप हाइट पूछ रहे थे? हाँ? लाइक हाइट? हाइट पूछो, क्यूएफई हाइट ही हुआ ना, कितना होगा? क्यूएफई विल बी रीडिंग 0, क्योंकि आपका टचडाउन पोजीशन है, आपका टचडाउन 0 है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे ऑटोमेटिकली वो रीड करना चालू करेगा। सो 10 फीट, 20 फीट, तो क्यूएफई विल बी अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ओके, ग्राउंड पे जब टचडाउन रहेगा तो क्या होगा? क्यूएफई विल बी 0। ओके, क्लियर ऑन क्यूएफई, क्यूएनएच, राइट? तो यहाँ पे दिया है, देखो, हाइट अबाउ द ग्राउंड, local altimeter setting equivalent to the barometric pressure measured at airport altimeter datum usually signifies approach end of the runway in use. At the airport altimeter datum, altimeter set to QFE indicates 0 altitude. मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना, अगर आपका रनवे पे टचडाउन पोजीशन पे है तो आपका अल्टीमीटर विल रीड 0 फीट। ऐसे आप टेक ऑफ करते हो, हाइट पे जाते हो, आपका क्यूएफई विल स्टार्ट रीडिंग 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, अकॉर्डिंगली आपका मेजर होगा। क्यूएनएच क्या है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल, ओके, अबव द मीन सी लेवल। ओके, सो इट्स नॉर्मली क्यूएनएच इंडिकेट्स द एयरपोर्ट एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। यानी मैंने क्या बोला आपको? क्यूएनएच इज नथिंग बट द मीन सी लेवल से आपका एयरपोर्ट, अभी ये हम लोग जो वेदर एंड मेट्रोलॉजी में करेंगे ना, तो मुंबई का एयरपोर्ट का हाइट हम मेजर करेंगे कितना है, देखेंगे हम लोग। ओके, सो दैट हाइट प्लस द एरोप्लेन हाइट, दैट विल बी योर क्यूएनएच, राइट? Similarly, standard altimeter setting, that is a QNA, is a pressure setting of 1013 hectopascal that will produce a standard atmospheric altitude and provides the basis of the flight level. यानी कि ये लेवल पे आपका फ्लाइट क्या है, in the middle of the ocean or middle of the sea, that will measure with respect to the pressure. Okay, with respect to the pressure बताया जाएगा और कन्वर्ट करके आपको बताएगा कि कितना हाइट पे आपको। Okay, there is a separate altimeter for this kind of activity. ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी वापस दिखाया, देखो हाइट, QFE इज हाइट। ओके, QNH क्या है? QNH इज एल्टीट्यूड। ये तो व्हाट इज एल्टीट्यूड? दिस हाइट प्लस एलिवेशन, क्योंकि आपका मीन से सी लेवल देखो यहाँ पे, समझो ये मुंबई का एयरपोर्ट है, यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट है, ये मुंबई का एयरपोर्ट है, तो ये डिफरेंस रहेगा ना, दिस एलिवेशन सी लेवल पे तो नहीं ना, थोड़ा सा हाइट पे है ना हमारा मुंबई का एयरपोर्ट। सिमिलरली दिल्ली एयरपोर्ट भी हाइट पे है, सी लेवल पे तो नहीं है, तो देयर विल बी, एवरी एयरपोर्ट विल बी हैविंग इट्स ओन एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू द सी लेवल। ओके, स्टैंडर्ड सी लेवल या मीन सी लेवल जो बोलते हैं। ओके, सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मुंबई सी लेवल इज ऑफ 8 मीटर्स। ओके, 8 मीटर्स है, तो अगर आपका हाइट ऑफ अ ड्रोन इज 20 मीटर्स प्लस दिस 8 मीटर्स, सो QFE विल बी 20 meters. QNH will be 20 plus 8, that is 28. I think now you should be clear with the example, right? So QNH will be 28, QFE will be 20. तो क्योंकि हमारा ड्रोन का हाइट कितना है? 20 फीट पे है, 20 मीटर्स पे है, तो ये 20 मीटर्स है, ये 8 मीटर्स है एलिवेशन। तो अगर मैं QNH में बोलूंगा तो बोलूंगा 28, अगर QFE बोलता हूं तो बोलूंगा 20। ओके, QNE इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बिकॉज वहां पे ये सब चीजें पिक्चर में नहीं आती, वो आप मिडल ऑफ द ओशन हो, तो मिडल ऑफ ओशन में क्या मेजर करते हैं? प्रेशर से मेजर करते हैं, तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, बट वहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर इज बीन टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो विद दैट वी कंप्लीट द टॉपिक ओवर हियर। ओके, ठीक है, तो अभी हमारे 3 ही मॉड्यूल कंप्लीट हुए हैं। आई विल नॉट टेक इट अहेड नाउ बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो थोड़ा लेंथी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो आई विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग ओनली। या ओके, ओके, जस्ट अ वीडियो, वीडियो ऑन करना, मुझे अटेंडेंस लेने दो, and we will start tomorrow proper on time at 10 o'clock okay, and finish all the topics accordingly. sure, sir.
Okay. Any questions on today's topic, whatever we have covered? Anywhere you feel point कोई discussion मतलब कुछ समझ में नहीं आया या understand नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? No, not really. No. All good, right? So far? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good.